مسیح یسوع کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آج ایک گواہی جو ہے کہ جو رکھی ہوئی تھی کہ اس کو میں آج لے کر آ رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ یہ 32 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ 32 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ جب میں نے خدا کے پاک کلام میں سے روح القدس کے بارے سنا اور خدا کے خادموں سے بھی میں نے روح القدس کے بارے سنا کہ روح القدس جو ہے کہ وہ کتنا ضروری ہے، کہ روح القدس جو ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اور روح القدس کا کیوں حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب میں خادموں سے سنتا روح القدس کے بارے، تو روح القدس کی جو پیاس ہے، بھوک ہے کہ وہ مجھے لگ جاتی، اور مجھے پاک روح کی جو طلب ہے کہ وہ لگتی، کہ میری کوشش یہ ہوتی کہ میں روح القدس کو جو ہے کہ وہ حاصل کروں، روح القدس کو میں حاصل کروں، اور روح القدس جو ہے کہ وہ میری زندگی میں آئے۔ روح القدس کی پانے کی جو تمنا یا آرزو میرے اندر ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ جانیں گے کہ روح القدس کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کو پانا، اس کو لینا کیوں ضروری تھا۔ میں نے بائبل مقدس میں سے یہ حوالہ پڑھا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، میں نے خدا کے کئی خادموں سے میں نے روح القدس کے بارے جو ہے کہ وہ سن رکھا تھا۔ میں نے خود بھی کہ بائبل مقدس کو کھولنا، بائبل مقدس کو پڑھنا جب میں نے پڑھنا شروع کیا، روح القدس کے بارے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، تو ایک حوالہ جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ جو میں نے حوالہ پڑھا، کہ اس کے بعد کہ میں روح القدس کو پانے کی کہ میں کوشش کرتا رہا، اور کتنا عرصہ جو ہے کہ روح القدس کو پانے میں کہ مجھے عرصہ لگا، یا دن یا ہفتے یا مہینے کہ مجھے لگے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں چاہوں گا کہ پہلے ہم خدا کے پاک کلام میں سے ایک ورس یعنی کہ پڑھیں، اور رسولوں کی اعمال کی کتاب میں سے یہ ورس ہے، اس کا پہلا باب ہے، پہلے باب کی 8ویں آیت، کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے۔ تو آئیں اس حوالے کو ہم پڑھیں گے کہ پہلا باب اس کی 8ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو خدا کے پاک کلام میں سے یہ جو میں نے ورس پڑھی کہ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا جا رہا تھا، آسمان پر جب وہ جا رہا تھا واپس، تو جاتے وقت کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو روح القدس کے بارے ان کو بتایا،
रूह कुदस के बारे उनको तालीम दी और उनको ये कहा कि जब तुम पर रूह कुदस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जब मैंने इस हवाले को पढ़ा जब जहाँ पर यीशु ने ये कहा कि जब तुम पर रूह कुदस नाज़िल होगा, और आगे जो यीशु ने कहा कि तुम कुव्वत पाओगे, यानी कि रूह कुदस जब नाज़िल होगा तो फिर कुव्वत जो है कि वो मिलेगी और हासिल होगी। अब जब मैंने इस कुव्वत के बारे कि मैंने पढ़ा कि कुव्वत जो है वो रूह कुदस के बगैर जो है कि वो नहीं मिल सकते, रूह कुदस के बगैर जो कि वो हासिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर कुव्वत को लेना है, कुव्वत को पाना है, तो फिर रूह कुदस को मांगना होगा, रूह कुदस को हासिल करना होगा। तो मेरे दिल में एक तरफ जो है कि वो पैदा हुई, मेरे दिल के अंदर ये तरफ पैदा हुई कि मैंने रूह कुदस को पाना है, मैंने रूह कुदस को लेना है। और इस वर्ष ने और इस कलाम ने मेरे अंदर एक तरफ जो है कि वो पैदा की, आरज़ू पैदा की और एक तमन्ना पैदा की कि मैंने रूह कुदस को पाना है और मैंने रूह कुदस को हासिल करना है। जब मैं रूह कुदस को हासिल करूँगा तो फिर मुझे कुव्वत मिलेगी, इसके बगैर मुझे कुव्वत नहीं मिलेगी। पहले मुझे रूह कुदस हासिल करना होगा, रूह कुदस मांगना होगा। मैं कोशिश करता रहा कि इस रूह कुदस को मैंने हासिल करना है। फिर मैंने एक और हवाला चलते चलते मैंने बाइबल मुक़द्दस को खोला, मुक़द्दस मत्ती की अंजील को जब मैंने खोला और 7वें बाब उसकी 7वीं आयत जब मैंने पढ़ी तो वहाँ पर यीशु ने अपने शागिर्दों को ये कहा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जब मैंने ये वर्ष पढ़ी, जब मैंने ये हवाला पढ़ा तो मैंने कहा भी रूह कुदस जो है कि वो मांगने से मिलता है। जब मैं मांगूंगा तो मुझे रूह कुदस मिलेगा, रूह कुदस मुझे मिलेगा। और मैंने मांगना शुरू किया, मैंने रूह कुदस को मांगना शुरू किया। और जब मैं रूह कुदस को मांग रहा था तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रूह कुदस को पाने के लिए मैं रोज़ा भी रखता रहा। मैंने कई रोज़े जो है कि वो रखे, कई रोज़े रखे रूह कुदस को पाने के लिए, रूह कुदस को हासिल करने के लिए कि मैंने रोज़े भी रखे, रोज़ों में रहा, रोज़ों में रहकर कि मैं मांगता रहा। मैं यीशु मसीह से रूह कुदस को मांगता रहा कि खुदावंद कि मुझे रूह कुदस दे, कि मुझे फिर जो है कि वो कुव्वत जो है कि वो मिलेगी, फिर मुझे कुव्वत मिलेगी। तो याद रखें कि मैं रूह कुदस को पाने के लिए मैंने रोज़े भी रखे और सुबह दोपहर शाम को दुआ में रहता। फिर मंगल के दिन ताजपुरा के अंदर के पास बशीर जिसके घर में एक दुआया इबादत होती शाम के वक़्त, यानी कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। और ये दुआया इबादत जो थी ये कभी कभी 10 भी बज जाते थे और 10 बज जाते थे कि टाइम हो जाता था 10 बजे का। तो मंगल की ये शाम होती थी, तो मंगल की शाम के अंदर के हमने पीर की शाम को रोज़ा रखना
और रोज़ा रख कर के यानी कि दुआया प्रे में जाते, दुआया इबादत में जाते। और वहाँ पर भी कि मैं कि खुदा यीशु मसीह से यानी कि रूह कुद्दस के बारे ही दरख्वास्त करता कि खुदा यीशु के मुझे रूह कुद्दस दे, खुदा यीशु के मुझे पाक रूह दे, ताकि मुझे कुव्वत मिले, ताकि मुझे ताकत मिले, ताकि मुझे कुव्वत हासिल हो जाए। तो ये सिलसिला जो है ये चलता रहा, मेरी जदोजहद बढ़ती गई, मेरा जुनून बढ़ता गया दुआ के अंदर, कलाम के पढ़ने में, और रोज़ों के अंदर मेरा जुनून जो कि वो बढ़ता गया। और एक वक्त ऐसा आया कि पास्टर बशीर जो ताजपुरा का था, और उसके चर्च में यानी कि सुबह के वक्त दुआ होती, सुबह के वक्त दुआ होती, करीबन कोई 5 बजे ये दुआया प्रे होती थी। और इस दुआया प्रे में मैं खुद भी जाता, इस दुआया प्रे में मैं खुद भी जाता। और मेरा भाई जो उस वक़्त मैं ना तो एल्डर और ना ही यानी कि छोटे भाई यानी कि इस वक्त वो पास्टर है और उसका नाम असलम है, तो वो भी यानी कि कोई खिदमत जो कि वो नहीं रखते थे, ना मैं ही कोई खिदमत रखता था। ठीक है, तो कि उसके चर्च के अंदर ये सुबह 5 बजे यानी कि ये दुआया इबादत होती। और उस चर्च के अंदर भी यानी कि कई हफ्ते जो हैं कि वो दुआ चलती रही, दुआ होती गई। और मैं सिर्फ एक ही बात जो है कि वो मैंने खुदा यीशु मसीह से रखी, कि वो यही बात कि खुदा यीशु के मुझे रूह कुद्दस दे ताकि मुझे कुव्वत मिले, इनाम में कि मुझे रूह कुद्दस मिल जाए और मुझे कुव्वत मिल जाए। तो एक वक्त ऐसा आया कि वो उस वक्त से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक और हवाला जो बाइबल मुकद्दस में से मुझे मिला कि जहाँ पर यीशु मसीह ने ये कहा था कि मेरे नाम से, ये यूहन्ना की अंजील में से ये हवाला है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से जो तुम चाहोगे, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, कि तुम्हें मिलेगा। तो मैंने कहा कि ये रूह कुद्दस जो है कि वो यीशु के नाम से ही मुझे मांगना होगा। अगर मैं यीशु मसीह के नाम से मैं रूह कुद्दस को मांगूंगा तो मुझे ये रूह कुद्दस जो है कि वो मिल जाएगा, मुझे हासिल हो जाएगा। मेरी जो तमन्ना है कि वो पूरी हो जाएगी, मेरी आरज़ू जो कि वो पूरी हो जाएगी, मेरी जो खुशी है कि वो पूरी हो जाएगी। और मुझे यानी कि ये कुव्वत जो है, वो ये जो ताकत है कि वो मुझे हासिल हो जाएगी। तो मैंने यीशु के नाम में भी यानी कि रूह कुद्दस को जो है कि वो मांगना शुरू किया। और ये सिलसिला जो है कम से कम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये करीबन 2 माह 3 माह तक ये चलता रहा, 2-3 माह तक ये चलता रहा। तो आखिरकार हुआ क्या, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। हुआ ये कि इतवार का दिन और मैंने एक नौजवान था, मैंने उससे कहा कि भी मैं इतवार के दिन भी जो है कि वो दुआ करना चाहता हूँ, इतवार के दिन भी जो है वो मैं दुआ मांगना चाहता हूँ। मैं यीशु की हजूरी में झुक कर जो कि दुआ में मैं यीशु मसीह के नाम में कि मैं रूह कुद्दस जो है कि वो हासिल करना चाहता हूँ, मांगना चाहता हूँ। तो हुआ क्या कि मैं चर्च में सुबह यानी कि 5 बजे मैं चर्च में गया, ताजपुरा के चर्च में, पास्टर बशीर के चर्च में गया। तो नौजवान जो था उसने चर्च का दरवाज़ा खोला और अंदर से जो है मैंने कुंडी लगा दी। और बाहर से भी मैंने उस भाई को कहा कि भैया अब बाहर से जो है कि वो आप दरवाज़ा बंद कर दें। ठीक है, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, चर्च का ताला लगा दिया। तो मैं अंदर जो है कि वो चर्च में जाकर मैं दुआ
दुआ करने लगा, दुआ मांगने लगा। जब मैं कम से कम कोई 15 मिनट के मैंने दुआ की, तो मैंने दुआ में ये रखा कि यीशु के मैंने आज जो है कि मैंने रूह कुदस को पाना है। आज मैंने रूह कुदस के बगैर मैंने नहीं जाना। आज आपने मुझे जो है कि वो रूह कुदस देना है, रूह कुदस देना है। तो वहाँ यानी कि 15 मिनट के बाद हुआ ये कि रूह कुदस जो है कि वो मुझ पर नाज़िल हुआ। रूह कुदस नाज़िल हुआ कि खुदा यीशु मसीह ने कि मुझे रूह कुदस से भर दिया, मुझे रूह कुदस से उसने मामूर कर दिया। जब मैं रूह कुदस से मामूर हो गया, रूह कुदस से भर गया, तो गैर ज़बान में मैं दुआ करने लगा, रूह में मैं दुआ करने लगा, ठीक है। और रूह में जब मैं दुआ कर रहा था, गैर ज़बान में जब मैं दुआ कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि भी मैं कितनी ऊंची दुआ कर रहा हूँ। मुझे तो यही पता था कि मैं गैर ज़ुबान में दुआ कर रहा हूँ, मैं गैर ज़ुबान में मैं रूह में दुआ कर रहा हूँ। अब मुझे रूह कुदस जो कि वो मिल चुका है, मुझे रूह कुदस जो कि वो हासिल हो चुका है। अब रूह कुदस के वसीले जो कि वो मुझे कुव्वत मिल चुकी है। अमार की किताब के मुताबिक जो है, पहले बाप के उसकी आत्मी ऐत के मुताबिक जो है कि मुझे कुव्वत जो है कि वो मिल गई है। तो ये कुव्वत जो है आप देखें रूह कुदस के वसीले के मुझे मिली है। जब रूह कुदस मुझे मिला तो मुझे कुव्वत मिली है। और किसी ने खादम ने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा और हाथ रखकर दुआ नहीं की है, ठीक है। कि रूह कुदस जो है वो मेरे ईमान से जो है कि वो मुझे हासिल हुआ। मेरे ईमान से, मेरा ईमान था कि मैं रोज़े रखता रहा और मैं बाइबल को पढ़ता रहा और मैं दुआ करता रहा। तो रूह कुदस जो है कि वो मुझे पास्टर बशीर के चर्च में सुबह 5 बजे जो है कि वहाँ से मुझे यानी कि रूह कुदस जो है कि वो हासिल हुआ। और यीशु मसीह ने मुझे ये नेमत दी, यीशु मसीह ने मुझे ये बख्शिश दी, यीशु मसीह ने मुझे ये इनाम दिया, यीशु मसीह ने ये मुझे ये बरकत दी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, आपसे कहूँगा मैं ये कि अगर आप चाहते हैं कि रूह कुदस हमें मिल जाए, हमें कुव्वत मिल जाए, ये बरकत मिल जाए, ये नेमत मिल जाए, तो फिर आपको भी कोशिश करनी होगी, फिर आपको भी रोज़े रखने होंगे, फिर आपको भी दुआ में ठहरना होगा, दुआ में रुकना होगा। तो जैसे मुझे खुदा ने ये बरकत दी है, तो यीशु मसीह जब वो आपको भी ये बरकत देगा। ये मेरी गवाही है, ये मेरी गवाही है कि यीशु मसीह जो है कि वो किसी के ईमान को याद रखे कि वो कमज़ोर नहीं होने देता, नाउमीद नहीं होने देता, बल्कि वो ईमान को बढ़ाता है भाई, वो हौसले को बढ़ाता है भाई। कि यीशु मसीह ने मुझे रूह कुदस देकर जो है, मुझे ये बरकत देकर, ये नेमत देकर जब वो मेरे हौसले को बढ़ाया, मेरे ईमान को बढ़ाया है। और आज मैं आपको कहता हूँ कि मैं रूह कुदस में हूँ और खुदा का शुक्र है कि रूह कुदस के बाद, इस कुव्वत के बाद कि खुदा ने कि मुझे इस्तेमाल किया, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। और आज उस वक़्त मैं कोई भी मेरे पास खिदमत नहीं थी, ना एल्डर की, ना मुबशर की, ना पास्टर की। और आज मेरे पास जो खिदमत है, मेरे पास जो ब्लेसिंग है, बरकत है, जो खुदा यीशु मसीह ने मुझे बरकत दी है, वो रेवरेंड की खिदमत है। आमीन, हालेलुया। ये खुदा ने मुझे ब्लेसिंग दी, बरकत दी है, ठीक है। तो आप ज़रूर, आप चाहते हैं तो यीशु के नाम में रूह कुदस मांगिएगा, और फिर रूह कुदस को पाने के लिए मांगो तो यीशु जो है कि वो आपको देगा, यीशु जो आपको वो बख्शेगा। ये मेरी गवाही थी। काफ़ी 32 साल हो चुके थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि ये गवाही दूं और मैं ये बताऊं
کہ ان لوگوں کو کہ جن کے پاس روح القدس نہیں ہے، تاکہ وہ میری طرح جدوجہد کریں، وہ میری طرح یعنی کہ وہ کوشش کریں اور ایمان جو ہے کہ وہ رکھیں اور روزے رکھیں اور روح القدس جو ہے کہ وہ حاصل کریں، دعا کریں۔ ٹھیک ہے، تو آج یہ میری گواہی ہے کہ جو میں نے بیان کی ہے، تو مجھے امید ہے کہ یوٹیوب پر جو ویڈیو دیکھیں گے، جو یہ کلام سنیں گے، جو یہ گواہی سنیں گے، ان کے اندر یہ جدوجہد پیدا ہوگی، یہ جنون پیدا ہوگا اور یہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی پاسٹر انور شبی کی طرح ہم یعنی کہ روزے رکھیں، ہم کوشش کریں، ہم دعا کریں کہ ہمیں بھی روح القدس مل جائے۔ چلیں ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، تو کوشش کریں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کے پیاروں، خدا کے خادموں، اس ویڈیو کو، اس یوٹیوب چینل کو ضرور یعنی کہ فالو کیجئے گا۔ جو نئے ہوں گے ان سے کہوں گا کہ فالو کیجئے گا، اور ضرور اس کو لائک کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا، کمنٹ بھی کیجئے گا، تاکہ بہت سی جانیں جو ہیں جو روح القدس کے بغیر ہیں کہ تاکہ ان کا ایمان پیدا ہو سکے، تاکہ وہ یعنی کہ وہ میری طرح جو ہے کہ وہ روح القدس حاصل کریں، قوت حاصل کریں۔ چلیں اپنا خیال رکھیں، یسوع مسیح جو وہ آپ کو برکت دے۔ آمین آمین۔